हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਮਾਡਲ ਸੀ ਥੌਮਸਨਸ ਮਾਡਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਦਰਫੋਰਡ ਅਲਫਾ ਰੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸੋਰਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਕੈਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮॉडल ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਦਰਫੋਰਡ ਮॉडल ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜੋ ਹੈ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲਾਈਕ ਪਲੈਨਟਸ ਅਰਾਊਂਡ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਦਰਫੋਰਡ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਮॉडल ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਰਬਿਟਸ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਤਾਂ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮॉडल ਸੀ ਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਪਿਕਚਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਊ ਪਿਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਂਟਮ ਨੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਜੋ ਮॉडल ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪਿਕਚਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫੀਅਰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਨ ਆਰਬਿਟਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਆਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਐਟਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕੂਲਮ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ 1/4πε0 E²/r²। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਰਜ E ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਰਜ E ਹੈ, ਤਾਂ E² Q1 Q2 E² ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ r²। ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mv²/r। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੈ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ necessary centripetal force Fc, mv²/r is equal to 1/4πε0 E²/r²। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਆਰਬਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੋ ਹੈ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, mv²/r is equal to 1/4πε0 E²/r²। r ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ r ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ r ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ E²/4πε0 mv²। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਟਿਕ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਇਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/2 mv²। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ mv²/r ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਕਿ mv²/r ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ r ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ r ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ mv² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1/4πε0 E²/r। ਤੇ ਕੈਨੇਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1/2 mv² ਹੈ, mv² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 1/4πε0 E²/r, ਤਾਂ 2 × 4πε0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ 8πε0r। ਤਾਂ ਕੈਨੇਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ E²/4πε0r। ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 1/4πε0 Q1 Q2/r। Q1 ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ -e ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ 1/ε0 Q1 Q2/r ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -e²/r। ਇੱਕ ਕੈਨੇਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਕੈਨੇਟਿਕ એનર્ਜੀ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੈਨੇਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਲੱਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ ਟੇਕ ਦੈਮ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਤਾਂ E² ਕਾਮਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 4πε0 r ਕਾਮਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 1/2, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜੀ -1, ਤਾਂ 1/2 -1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ -1/2। -1/2 ਇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -E²/8πε0r। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ nucleus means proton which is negative। total energy negative एक बाउंड सिस्टम ਨੂੰ रिप्रेजेंट करती है। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
तो उसका फॉर्मूला भी कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ जो ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ कि उसकी किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके उसकी टोटल एनर्जी नैगेटिव आई सी। ठीक है ना। इस तरीके नाल ही साडी जिहड़ी एनर्जी है, जे असीं अर्थ की एनर्जी कैलकुलेट करिए अराउंड द सन, तो सारे सिमिलर सिस्टम्स नूं रिप्रजेंट कर रहे हैं। नैक्सट टॉपिक है जी एटॉमिक स्पैक्ट्रा। हुण स्पैक्ट्रा की है, पहले मैं तुहानूं दस्सिया सी कि एटम्स कुछ रेडिएशनस इमिट करते हैं, तो उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ असीं नोट करते हैं, जो वो एटम्स इमिट कर रहे हैं, तो उसनों एक पैटर्न दे विच अरेंज करते हैं, तो उसनों असीं कहने स्पैक्ट्रा। ठीक है। तो ईच एलीमेंट हैज़ अ करैक्टरिस्टिक स्पैक्ट्रा ऑफ रेडिएशन विच इट एमिट्स। जो असीं एक गैस नूं एक्साइट करते हैं, वैन एटॉमिक गैस इज़ एक्साइटेड एट लो प्रैशर, कि असीं एक किसी ट्यूब दे विच असीं गैस लै रहे हैं लो प्रैशर ते, एटॉमिक गैस जिसनूं असीं जिस दे विचों इलैक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। ठीक है। इलैक्ट्रिक करंट पास करन दे नाल वो एक्साइट हो जाती है। ठीक है। मतलब वो कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब कर रही है। तो जो बाद विच असीं उस गैस नूं देखते हैं, वो जो गैस है कुछ रेडिएशनस इमिट करती है, जिसनों एमिशन लाइन स्पैक्ट्रम कहते हैं। लाइन स्पैक्ट्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्टन स्पैसिफिक वेवलेंथ्स वो इमिट कर रही है, पर्टिकुलर वेवलेंथ्स इमिट कर रही है। ठीक है। तो उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग साडे कोले असीं उसनूं लाइन स्पैक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि वो एमिट कर रही है, तो इसलिए एमिशन लाइन स्पैक्ट्रम। तो देखो जी, इस तरह का कुछ पैटर्न बनता है कि जिवें ये वेवलेंथ इमिट की है, ये वाली वेवलेंथ है, कुछ वेवलेंथ्स बहुत क्लोज है। ठीक है। कुछ लाइनस बहुत क्लोज है, तो इस तरह स्पैक्ट्रा रिप्रजेंट किया जाता है। तो ब्राइट लाइनस आ रही हैं साडे कोले अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। इस तो ऑपोजिट जे असीं देखिए कि जो लाइट पास करते हैं असीं किसी गैस दे विचों, वाइट लाइट पास कर रहे हैं, देखो किसी गैस दे विचों। ठीक है। तो उस गैस नूं ट्रांसमिट होण दईए, उस दे विचों पास होण दईए, तो उस दे स्पैक्ट्रम नूं असीं ऑब्जर्व करिए, तो उस दे विच कुछ डार्क लाइनस आउंदियां। डार्क लाइनस का मतलब की है कि उस वाइट लाइट दे विचों कुछ वेवलेंथ्स गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है। तो जो स्पैक्ट्रा उत्थे सानूं मिलता है उसनूं कहंदे एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रा, विच इज़ वेरी सिमिलर टू द एमिशन स्पैक्ट्रा। मतलब जो वेवलेंथ्स एटम या एटॉमिक गैस इमिट कर रही है, उस तरह दियां ही वेवलेंथ्स, वही वेवलेंथ्स वो एब्जॉर्ब करती है। एटम कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर रहा है, गैस कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसनूं एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रा कहंदे हैं ऑफ दैट मटीरियल। तो जो वो एमिट कर रही है उसनूं एमिशन स्पैक्ट्रा कहंदे हैं। एंड दीज बोथ आर लाइन स्पैक्ट्रम। ठीक है। साडे कोल पर्टिकुलर वेवलेंथ्स आंदियां भी ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब होएगी या ये वेवलेंथ एमिट होएगी। दीज आर डिस्क्रीट लाइन्स। नैक्सट टॉपिक है जी स्पैक्ट्रल सीरीज़। हाइड्रोजन देखो एक सिंपलेस्ट एटम है, तो हाइड्रोजन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होई कि हाइड्रोजन किस तरह का स्पैक्ट्रा जो है शो करता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन के स्पैक्ट्रम नूं ऑब्जर्व किया सब तो पहला जो साइंटिस्ट सी उसका नाम सी बाल्मर। तो बाल्मर ने एक स्पैक्ट्रल सीरीज़ ऑब्जर्व की जिसनों बाल्मर सीरीज़ कहा जाता है। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो हाईएस्ट वेवलेंथ जो एमिट करता है हाइड्रोजन एटम, जिसनों एच अल्फा लाइन कहा गया है, दैट इज़ 656.3 नैनोमीटर। तो जो लोएस्ट वेवलेंथ वो एमिट करता है दैट इज़ 364.6 नैनोमीटर। तो इन लाइन्स नूं एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा लाइन्स क्यों कहा गया, तो इसकी एक्सप्लेनेशन असीं अगे जाके देवांगे जी बाद विच। तो जो लाइन्स उसने एमिट कीतियां, तो पहला उसने ये समझा कि जो पैटर्न है, जो स्पैक्ट्रम है, वो इन्ना सिंपल नहीं है। ठीक है। जिन्ना सानूं लग रहा है कि कुछ लाइन्स एमिट हो रही हैं। ठीक है। उन्हां दे विच रिजेंबलेंस है, कुछ ऑर्डर है। ठीक है। तो उसने डिटेल दे विच ऑब्जर्व किया, तो उसने एक फॉर्मूला भी दिता। तो फॉर्मूला सी 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला उसने दिता वेयर r इज़ रिडबर्ग कॉन्सटेंट। इसकी वैल्यू याद रखनी है तुसीं, ये वैल्यूज़ की जरूरत पएगी न्यूमेरिकल्स विच। तो रिडबर्ग कॉन्सटेंट की वैल्यू कितनी है 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर। तो इस इक्वेशन नूं बाल्मर फॉर्मूला कहा गया। ठीक है। हुण जे असीं एच अल्फा लाइन की गल करते हैं, वट इज़ एच अल्फा लाइन। एच अल्फा लाइन दे विच एन की वैल्यू 3 होंदी है, भी इत्थे आ तो फिक्स रहेगा जी 2। एच अल्फा लाइन लई एन की वैल्यू 3 है, तो जो असीं एच इन्फिनिटी की गल कर रहे हैं इस दे विच एन की वैल्यू इन्फिनिटी है। ठीक है। मतलब 2 तो अगे शुरू हो जाएगा जी, 3 4 5 एन दी वैल्यूज़ असीं एज इट इज़ पुट करांगे। ठीक है। तो लैम्डा उसने कैलकुलेट किया जी 2 ते 3 लई। जो असीं बोहर का मॉडल स्टडी करांगे तो फिर सानूं पता लगेगा कि जो एन है वो की है,
n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है कि किस ऑर्बिट तो इलैक्ट्रॉन किस ऑर्बिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਪੈਕਟਰਾ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਲਮਰ ਸਪੈਕਟਰਾ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਐਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ। ठीक है जी, इस तो बाद ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਜੋ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਪਾਸਟਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਪਫੰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਨ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1/1 ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 1/n ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ। ਇਹੀ ਪਾਸਟਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਸਟਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਫੰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੇਵਲੈਂਥ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ दैट इज़ इन विजिबल रीजन। ठीक है, जो पास्टन सीरीज़ है दैट इज़ इन इंफ्रारेड रीजन, जो ब्रैकेट सीरीज़ है तो पफंड सीरीज़ है दैट इज़ इन फार इंफ्रारेड रीजन। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला तुसी याद रखना है जी कि 1/λ इज़ इक्वल टू R 1/ एक फिक्सड नंबर है जिंदे विच जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है इसनूं असीं अगे जाके होर डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। बट ये जो फॉर्मूले है इत्थे यूज़ हो रहे हैं ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम लई है जां हाइड्रोजन लाइक आइटम्स लई है। जिवें सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम है तो हायर एटम्स के उपर जोड़े है फॉर्मूले जोड़े है इन्ने सिंपल नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम नूं समझण लई कुछ फॉर्मूले जो है वो बनाए गए हैं। नैक्सट इज़ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर ने एक न्यू मॉडल दिता हाइड्रोजन एटम लई। क्यों दिता जी? पहले सानूं ये समझाना चाहिए कि रदरफोर्ड के मॉडल दे विच की प्रॉब्लम सी। देखो रदरफोर्ड ने एक प्लैनेटरी मॉडल दिता लाइक सन प्लैनेट सिस्टम कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, उस तरीके नाल इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस कि इलैक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता ना न्यूक्लियस के अराउंड तो वो कुछ रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। ठीक है, जो असीं स्पैक्ट्रा दे विच ऑब्जर्व की। हुण जो रेडिएशन एमिट करेगा वो क्यों करेगा? जो वो न्यूक्लियस के क्लोज आएगा। ठीक है ना, तां ही वो रेडिएशन नूं एमिट करेगा, क्लोज आएगा। तो जो वो क्लोज आता है उसदे तो इस तरह होना चाहिए कि वो कंटीन्यूसली क्लोज आ रहा है तो जो रेडिएशन एमिट होनी चाहिए वो कंटीन्यूस होनी चाहिए है। तो जो रेडिएशन लगातार एमिट हो रही है कंटीन्यूस एमिट हो रही है तो उसका कंटीन्यूस स्पैक्ट्रम होना चाहिए। ठीक है ना, बट जो असी ऑब्जर्व कर रहे हैं स्पैक्ट्रा दे विच वो साडे कोल डिस्क्रीट लाइनस आ रही हैं कि एक डेफिनेट एनर्जी आ रही है, एक लाइन स्पैक्ट्रा आ रहा है। ठीक है ना, तो जो उसके अकॉर्डिंग चाहिए सी जे क्लोज आंदा है इलैक्ट्रॉन तो फिर कंटीन्यूस स्पैक्ट्रम होना चाहिए सी। द एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटिंग इलैक्ट्रॉन शुड देयरफॉर कंटीन्यूसली डिक्रीज। द इलैक्ट्रॉन शुड स्पायरल इनवर्ड एंड इवेंचुअली फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है तो वो क्लोज आ रहा है प्रोटॉन के न्यूक्लियस के, तो फिर अल्टीमेटली दैन इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो इस तरह की जो पिक्चर है वो एक स्टेबल एटम नू रिप्रजेंट नहीं कर रही। ठीक है, तो जो क्लासिकल पिक्चर सी जो रदरफोर्ड ने दिती सी तो बोहर नू इस पिक्चर दे विच ये प्रॉब्लम लग रही सी। इन्हां पॉइंट्स नू, ठीक है ना, जो मैं मार्क किए हाईलाइट किए है तो इन्हां नू असीं कह सकते हैं लिमिटेशनस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, जो बोहर नू लग रहा सी तो इन्हां पॉइंट्स नू असीं कहांगे लिमिटेशनस इन रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, जिसनों कि बोहर ने रिमूव किया। तो हुण असीं बोहर ने जो पोस्टुलेट्स दिते, जो पॉइंट्स दिते, उन्होंने पॉइंट्स नूं डिस्कस करते हैं कि वट इज़ बोहर मॉडल ऑफ एटम। नील बोहर ने रदरफोर्ड की लैबोरेटरी दे विच काम किया अराउंड 1912 फॉर सैवरल मंथ्स। ठीक है, तो उसने ये देखा कि रदरफोर्ड मॉडल की जो वैलिडिटी है उसनूं चैक किया तो उसके जो माइंड दे विच आ रहा सी कि जो ये थ्योरी है जो क्लासिकल थ्योरी है तो बोहर ने की किया जी इसनूं जो क्वांटम थ्योरी सी, जो क्वांटम कॉन्सैप्ट सी जो आइनस्टाइन दे प्लैंक दे उन्हां दे नाल इसनूं मिक्स किया तो कुछ पोस्टुलेट्स दिते तो एक नवा मॉडल जो है वो तैयार होया जिसनूं बोहर मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है। तो बोहर ने की प्रपोज किया जी उन्हां पोस्टुलेट्स दे विच कि फस्ट पोस्टुलेट है देखो an electron in an atom could revolve in certain stable orbits कि stable orbits है without the emission of radiant energy।
कि जिन्ना चिर वो उस ऑर्बिट दे विच रिवॉल्व करता रहेगा अराउंड द न्यूक्लियस वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इस दे अकॉर्डिंग इन्हां ऑर्बिट्स नूं की किया स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है जी। दूसरा जो है बोहर दा पोस्टूलेट सीगा उस दे विच उन्हें एंगुलर मोमेंटम की गल की। प्लैंक कॉन्सटेंट उन्हें यूज़ किया कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड। हुण ऑर्बिट कित्थे होएगा, किते भी तो नहीं हो सकता न्यूक्लियस के राउंड जिन्ने मर्जी डिस्टेंस से लै लो। तो उसने कहा कि ओनली दोज स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम की उन्हें एक लिमिट फिक्स की कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब उन्हें n नाल मल्टीप्लाई करता। ठीक है। जो एंगुलर मोमेंटम है इलैक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व कर रहा है दैट इज़ क्वांटाइज्ड कि वो फिक्सड क्वांटिटी होएगी। ठीक है। कितनी होएगी h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है। फिर h इज़ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, पाई की वैल्यू सानू पता ही है जी। तो n एक नंबर है जो कि 1 2 3 हो सकता है। ठीक है। इंटीजर है। तो बोहर का जो थर्ड पोस्टूलेट सी वो भी प्लैंक ते आइनस्टाइन की थ्योरी तो क्वांटम कॉन्सैप्ट्स तो डिवेलप होया कि जो इलैक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, ठीक है, तो वो एनर्जी रेडिएट करता है कि एन इलैक्ट्रॉन माइट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पैसीफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, मतलब स्टेशनरी स्टेट जो ऑर्बिट की असीं गल करते हैं, टू अनदर लोअर एनर्जी। ठीक है। टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी वैन इट डज अ फोटोन इज इमिटेड। ठीक है। फोटोन पिक्चर आ गई देखो जी हुण। ठीक है ना। हुण वो कहता कि वो एक फोटोन इमिट हो रहा है हैविंग एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है। सपोज करो ये न्यूक्लियस है। ठीक है। न्यूक्लियस के राउंड एक स्टेशनरी ऑर्बिट है, ये दूसरा स्टेशनरी ऑर्बिट है। जो वो इस स्टेट के विचों इहदे विच जंप करेगा, ठीक है, तो एक फोटोन इमिट करेगा। ठीक है। तो वो उनकी एनर्जी डिफरेंस जो फोटोन की एनर्जी एच नहीं होंगी तो किस दे इक्वल होएगा, दैट इज़ EI - EF, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। ठीक है। दोनों लैवल्स दे विच जो एनर्जी का डिफरेंस है। ठीक है। तो बोहर ने की किया जी कि रदरफोर्ड के मॉडल दे विच उसनूं जो प्रॉब्लम लग रही सी कि वो कंटीन्यूस स्पैक्ट्रा इमिट करना चाहिए सी बट वो नहीं कर रहा। ठीक है। लाइन स्पैक्ट्रा इमिट कर रहा है, तो वो इत्थे प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि जिन्ना एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है ना, वो लगातार कंटीन्यूसली उसके नज़दीक नहीं आएगा, वो जंप करके आएगा। क्लीयर है। तो दोनों चीज़ां क्लीयर हो गई जी कि वो जो डिस्क्रीट लाइनस आ रही सी वो भी क्लीयर हो गई कि वो क्यों आ रही सी। दिस इज़ द मॉडल विच इज़ प्रपोज्ड बाय बोहर। तो नैक्सट टॉपिक दे विच असीं इसनूं होर डिटेल दे विच डिस्कस करांगे, कुछ मैथमैटिकल कैलकुलेशनस करांगे जिस दे विच असीं वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन ते एनर्जी दा एक्सप्रैशन फाइंड करांगे। ठीक है। जो इलैक्ट्रॉन दी है। सो टिल दैन ऑल द बेस्ट।